solids. हाँ जी है ना, and little more in case of liquid, and they are very far apart in case of gases. ठीक है, let's take the, based on this we will define the particles as solid, liquid and gas, but that we'll see later on. Write down the third property of matter. Anyone, what is third property of matter? Particles of matter attract. Particles of matter have forces of attraction between them. हाँ जी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। ये जो फोर्सेस है ये आप हायर क्लासेस में जाएंगे, सो यू स्टडी बिटवीन देम अबाउट देम, बट दिस पार्टिकल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। इन केस ऑफ your solid and liquid, this force of attraction is high because they are very close proximity. तो ये जो force है, this force is there when they are in very close proximity. If they are slightly apart, then this force basically vanishes away. ठीक है, तो like gravitational force, this is proportional to, inversely proportional to square of distance. ठीक है, so this force is present in case of solid is very high because particles are almost touching each other. In case of liquid, this is high. In case of gases, this force is missing. ठीक है, please write down third one, the particles of matter attract each other. Sir, noted. Okay. Let's take the fourth one. The particles of matter are constantly moving. This is the most important property, है ना। ये जो motion है in case of solid, this also you write down beta. In case of solid, this motion is rotatory, vibratory, oscillatory. ठीक है, no linear motion. In case of liquid and gas, they have linear motion also. Linear motion का मतलब है they are not, in case of solid they are not leaving their position. In case of liquid and gas, they are continuously leaving their position. Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let me ask you a question, है ना। जो atoms है बेटा, they were first being observed under electron microscope in late 20th century, है ना, somewhere around 1930 1940 they were able to observe them under the microscope. But ये जो property है that the particles are continuously moving, this was given in 1827. ठीक है, हाउ इज दैट पॉसिबल? भाई जब आपने एटम देखा ही नहीं था तो हाउ यू कुड प्रपोज कि भाई दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग? Sir, because कोई they are डेमोन्स्ट्रेशन करी होगी ऋषित फिर से। सर, उन्होंने मतलब कोई एग्जाम्पल किया होगा, मतलब कोई डेमोन्स्ट्रेशन होगी कि किसी कोई वाटर। डेमोन्स्ट्रेशन होगी। एनीवन एनी आइडिया व्हाट डेमोन्स्ट्रेशन दैट वाज? सर आई नो। हाँ जी त्रिना। boiling water. Sir, is it diffusion? Diffusion, but how it was shown? A drop of ink was Sir, put can in I? water in a हाँ glass. जी निष्ठा। Sir, in water, we can say that when we pour water into any container, it takes the shape of the container, and we can say that the particles are moving. Sir, can I also try? Tanvi first. Tanvi। Yes, sir. So a drop of ink is put into water. Come again. A drop of ink is put into water, so it spreads. A drop of film when put on water, it spread. Okay, very good. Okay. यहाँ पर जो है जिसने प्रपोज किया था ना, the person who proposed, his name was Robert Brown. Write down. Sir, Robert। Brownian motion. हाँ जी,
Brown in 1827, he proposed Brownian motion. सर ब्राउनियन मोशन में क्या होता है? Brownian motion is, let's see here, Brownian motion, है ना? I'll discuss this in detail. So Brownian motion is, सर हाँ जी, सर रॉबर्ट ब्राउन है या फिर रॉबर ब्राउन? रॉबर्ट ब्राउन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर क्या रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में देखा था? Robert Brown actually observed it under the microscope, and then he observed that even the glass of water, which was still, it was not being moved for a few hours, so it was having pollen grains in it. Microscope में pollen grains were looking like football. तो pollen grains are otherwise microscopic ना. आपका flower के अंदर anther के अंदर pollen grains. But he found those pollen grains were not stationary. वो pollen grains continuously move कर रहे थे. He has not observed उसको water के जो H2O है molecules वो थोड़ा ना दिखे. नहीं उनके लिए तो हमें electron microscope चाहिए. But he saw those pollen grains and he couldn't make out कि भाई ये pollen grains जो ये क्यों move कर रहे हैं. Then he draw the graph of those pollen grains and then he observed कि ये जो movement है ये random movement है. कुछ pollen grain धीरे move कर रहे हैं, कुछ तेज, कुछ left, कुछ up, कुछ down. And then he was the first one who observed and who proposed Brownian motion. ठीक है? And he said कि जो fluid है उसमें जो microscopic particle है, they are continuously moving and they are bombarding with each other. That is what is Brownian motion. और फिर ये Brownian motion के बाद then came the theory of diffusion. ठीक है? That we'll discuss. तो पहले आप Brownian motion लिख लें. तो अगर आप किसी ग्लास के अंदर, ठीक है, what he observed was glass में this water was there. He was observing with microscope. He found there were this pollen grains were there, microscopic pollen grains. And water is not moving, but these pollen grains are continuously moving, zigzag in high speed. ठीक है? And this random movement of microscopic particle in water, in fluid, is what is called as Brownian motion. ठीक है? So write down this. Brownian motion is random movement of microscopic particles in a fluid. As a result of which, or as a result of continuous bombardment. From molecules of the surrounding medium. ठीक है? अगर पानी में ब्राउनियन मोशन इज, अगर पानी में हम कुछ भी माइक्रोस्कोपिक स्मॉल पार्टिकल्स डालेंगे, ठीक है, तो दे विल शो रैंडम मूवमेंट. क्यों? क्योंकि जो आसपास जो मॉलिक्यूल्स हैं उस फ्लूइड के, दे आर कॉन्टिन्यूसली बम्बार्डिंग विद देम एंड दस दे आर मूविंग रैंडमली. है ना? अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर मूविंग वेरी हाई स्पीड. भाई बहुत हाई स्पीड पे मूव कर रहे हैं, है ना, faster than jet plane. इतना फास्ट वो वाटर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, बट फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन. है ना? क्योंकि थोड़ी देर मूव करते हैं, फिर सामने एक और वाटर पार्टिकल है ना, देन दे बम्बार्ड. बट व्हेन दिस माइक्रोस्कोपिकली वेरी टाइनी water molecules, they bombard with pollen. Now pollen are relatively bigger than water molecules, very bigger than water molecules. So but when the bombardment is there, these pollens are also moving, not very fast, very slowly, but they are moving. And that zigzag motion of these microscopic particles, that is pollen, because of molecules of the fluid hitting it, is called Brownian motion.
क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yeah, and this Brownian motion was the first one which actually said, मतलब, which came out and this said कि भाई fluid particles of matter are in continuous state of motion. ठीक है? Particle of matter are in constant state of motion. है ना? This motion is what gives it kinetic energy, and that kinetic energy is what gives it temperature. ठीक है? So जो आपका, ठीक है, kinetic energy है, that is proportional to the velocity square, and जो आपका temperature है, that is proportional to the kinetic energy. तो अगर velocity बेटा आपकी डबल हो जाएगी तो kinetic energy जो है वो 4 times हो जाएगी, and temperature will increase proportionally more. Right? Okay. Now, if you will take a room, ठीक है, और रूम में बेटा आपने सारे वेंटिलेटर्स क्लोज किए हैं, देयर इज नो फैन इन द रूम, नथिंग इज, एयर इज नॉट ब्लोइंग एट ऑल, है ना, फैन भी बंद है, विंडोज बंद है, वेंटिलेटर्स बंद है, एवरीथिंग, इट्स अ क्लोज्ड रूम, एंड यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ ऑल्सो, एंड आपने जो है यहाँ साइड में जो अगरबत्ती जलाई है. अब ये जो अगरबत्ती का धुआं है ना, आपने थोड़ी देर जलाई, कितनी देर, 10 सेकेंड्स. उन 10 सेकेंड्स में ये जो धुआं है ये पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा, है ना. हाउ इज दिस हैपनिंग? द फिनोमेना कॉल्ड डिफ्यूजन. हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था ये फिनोमेना, है ना. Yes. And that diffusion is because of property of matter that says that particles of matter are in continuous states of motion. ठीक है. So आप diffusion की definition लिख लें, है ना, ये इसी चैप्टर का पार्ट है. So that is diffusion. अब यहाँ पर हम definition में अपना motion को will bring it, है ना, particles motion को. So diffusion is spreading and mixing of substance with another substance due to continuous motion of its particle. सर इस चैप्टर में डिफ्यूजन का कुछ उससे मीडियम से रिलेशन नहीं है, डेंसिटी से. हाँ, डेंसिटी बेटा ये आप 11th में पढ़ेंगे, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है. सो दैट इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द मैटर, है ना. अगर मैटर का मास ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है. बट डिफ्यूजन जो है, इफ यू विल सी, डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस बिटवीन two gases, diffusion can take place between two liquids, and diffusion can take place between two solid also, है ना. अगर आप solid में diffusion देखना चाह रहे हैं जहां पर solid particles are going into one another, है ना. Let me see here. हाँ जी, let's say अगर आपने किसी स्कूल के, है ना, ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, if you written down with a chalk, ठीक है, and let's say उसके बाद जो है there is a summer vacation is there, so for 2 months board पर जो है chalk से something was written down. After 2 months when you will come and you will erase the board, it will take lot of effort, है ना, वो erase नहीं होगा जल्दी से. Plus you'll have to make the duster as wet, और duster को wet करके then you will be able to erase it. तब भी बिल्कुल अच्छे से erase नहीं होगा. That is because of diffusion being taking place, है ना. So diffusion can take place in solid also, but at slow pace. Write down, जहाँ diffusion लिखे हैं वहाँ पर write down this. Diffusion
takes place in solid also, but at very slow pace. ना एक दो पॉइंट और लिख लें आप इसमें. Rate of diffusion increases with increase in temperature. भाई टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? Sir, more movement in particles. मोर मूवमेंट मोर डिफ्यूजन. ठीक है, और फास्टर डिफ्यूजन. Yes, sir. And you can say smaller or lighter molecules will diffuse faster. Sir, how small particle will diffuse faster? बेटा स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो विद सेम टेम्परेचर सेम एनर्जी दे विल बी मूविंग फास्टर, और फास्टर मूव करेंगे तो डिफ्यूजन फास्टर होगा. Okay, sir. यू नो एक पॉइंट जो हमने सेल में किया था, तो सेल में कौन सा पॉइंट किया था बेटा? डिफ्यूजन जो है हमारा दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. राइट ऑन दिस. तो राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफ्यूजन में आ सकता है ना, तो यू राइट ऑल दिस पॉइंट्स. डिफ्यूजन इन डिफ्यूजन मूवमेंट. 1 मिनट सर ये भी उसका पॉइंट है. हाँ जी हाँ जी. मूवमेंट ऑफ particles takes place from, हाँ जी दिव्यांश, I'll show the definition again. From higher concentration to lower concentration. Sir, I have a question, sir. हाँ जी सोहम. सर तो अगर ज्यादा मास होगा तो डिफ्यूजन थोड़ा स्लो होएगा, और अगर कम मास होगा तो डिफ्यूजन फास्ट रहेगा. हाँ जी हाँ जी. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. Sir, how is the rate of diffusion proportional to the increase in temperature? बेटा इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा देन पार्टिकल मूवमेंट वो इंक्रीज करेगी एंड देन डिफ्यूजन विल इंक्रीज. भाई पार्टिकल ज्यादा तेज मूव कर रहे होंगे तो डिफ्यूजन दैट इज मिक्सिंग विल बी मोर, है ना. एक रूम में जो है बॉयज हैं, एक रूम में गर्ल्स हैं, तो वो थोड़ी देर में आपस में मिक्स कर जाएंगे ना. छोटे छोटे बॉयज गर्ल्स हैं, they will roam around between the two rooms and they will mix each other. now अगर बच्चे ज्यादा शैतान है तो ज्यादा जल्दी मिक्सिंग हो जाएगी, है ना. and if they are relatively tired and they are not moving fast then mixing slowly होगी. Okay, sir. Got it. Sir, noted. noted. okay. आपको डेफिनेशन देखनी थी ना? Yes, sir. ओके.
So ठीक है? done. Okay. In case you are interested, so you can say that rate of diffusion is, देखो मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप मुझे टाइम दें, काइनेटिक एनर्जी किसी को पता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? नो, तो आपने सुना नहीं है, ठीक है। तो वर्क पावर एंड एनर्जी जब हम करेंगे देन आई विल टेक दिस टॉपिक अगेन, बट अदरवाइज आप लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली proportional to roots of the mass, molar mass of gases, ठीक है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बेटा वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा डिफ्यूजन, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मासेस, है ना। अगर मास ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। सर आपने मास के पहले कौन सा वर्ड लिखा है? मास से पहले मोलर मास, है ना, दैट अगेन वी विल डिस्कस इन चैप्टर 3, केमिस्ट्री का चैप्टर 3 करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे मोलर मास क्या होता है। सर ये फॉर्मूला पर वापस बताना है कि क्या? देखो जो अगर सेम टेम्परेचर है बेटा, सेम टेम्परेचर का मतलब है दे हैव गॉट सेम एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी हम देते हैं हाफ mv² से, है ना। तो दिस इज हाफ mv², है ना, दूसरी गैस हो गई मान लो ये, ठीक है। अगर सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर है तो दोनों में कौन ज्यादा तेज डिफ्यूज करेगा, कौन कम तेज डिफ्यूज करेगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन जो है वो वेलोसिटी पर प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी की रेशियो क्या है यहाँ पर, va²/vb², दिस इज mb/ma, है ना। तो जो वेलोसिटी की रेशियो है वही रेशियो रेट ऑफ डिफ्यूजन की होगी, सो विच इज स्क्वायर रूट ऑफ mb/ma, ठीक है। ये आपका जो है 9th का ही पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। इसका मतलब है एक अगर बॉडी है ना, तो अगर मैं दिव्यांश की बात करूं, हिज मास इज 50 kg, अगर दिव्यांश जो है वो बहुत तेज भाग रहा है और वो लेट्स से अगर किसी डोर के साथ हिट करता है ना, तो देयर आर चांसेस डोर विल गेट डैमेज। व्हाई डोर इज गेटिंग डैमेज? बिकॉज ऑफ एनर्जी विच वाज देयर विद दिव्यांश, so that energy has got transferred on the door, ठीक है। एंड दैट एनर्जी विच एनीवन पोजेस बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, क्योंकि वो मूव कर रहा है उस वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय हाफ mv²। एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क। अगर कोई बंदा भाग रहा है, ट्रक भाग रहा है, वो किसी चीज से टकराएगा तो इट कैन डैमेज दैट थिंग, मींस इट कैन डू सम जॉब ऑन दैट, है ना। डैम में ऊपर हाइट से अगर पानी गिरता है तो वाटर वेलोसिटी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर जो हमने कंपेयर किया है, तो वी आर सेइंग कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा डिफ्यूजन, एंड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मासेस। यस ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये VA और VB किसको डिनोट कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ गैस ए एंड गैस बी। हम यहाँ पर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बात कर रहे हैं, लेट्स से वी आर डिस्कसिंग। Sir, can you please explain the diffusion topic again? 1 minute Midansh. Rate of diffusion between two gases at same temperature and pressure, ठीक है। टू गैसेस कौन सी हैं, A and B। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये जो M है वो मास है? हाँ जी, M is mass, ओके सर। V is velocity, M is mass।
सर तुम सीधा वो वाली इक्वेशन यूज करते हैं, वो जो नीचे लिखा है हाफ इनटू नहीं m बेटा, into ये इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, है ना? यू सर शुड मतलब बी अवेयर ऑफ। हाँ जी, ये यूज कर सकते हैं Sir, रेट। can you please explain the topic again? हाँ जी बेटा, सर मैं वो वाली बोल रहा हूँ हाफ इनटू m into v स्क्वायर वाली जो आपने नीचे लिखी हाँ थी। वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है, फिर से एक बार है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है अगर मैंने यहाँ पर बेटा दो गैस लिए, है ना, लेट्स से यहाँ पर दिस इज होल इज देयर, है ना, नाउ आई हैव गॉट टू गैसेस हियर। ठीक है, यहाँ पर लेट्स से बॉयज हैं और यहाँ पर लेट्स से गर्ल्स हैं। ठीक है, अब आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम में, ये जो बॉयज है ये यहाँ से इधर जाएंगे, ये जो गर्ल्स हैं ये यहाँ से इधर आएंगे, है ना। एंड आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड इनिशियली यहाँ पर लेट्स से 20 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं, थोड़े टाइम में यहाँ पर 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स एंड 6 गर्ल्स हो जाएंगे। एग्रीड? ये ऐसा क्यों हो जाएगा? ऐसा इसलिए हो जाएगा बिकॉज ऑफ फिनोमिना कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल की जगह आप डिफरेंट टू गैसेस रख सकते हैं, है ना। थिंग इज कि ये जो 10 बॉयज हैं ये तो हमारा अचीव हो गया इन 20 मिनट्स, और ये 6 गर्ल्स हैं ये जो है ये अचीव हुआ आफ्टर 1 आवर। तो बॉयज का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो फास्टर था, गर्ल्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो है। तो वो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है कि कितनी देर में डिफ्यूजन कंप्लीट होगा या कितनी फास्ट हो रहा है, वो दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर बॉयज ज्यादा तेज चल रहे हैं, गर्ल्स स्लोली चल रही हैं, तो ऑफ कोर्स बॉयज जो है वो जल्दी डिफ्यूज करेंगे, है ना भाई। अगर बॉयज जो है वो भाग रहे हैं और गर्ल्स जो है बहुत कैजुअली चल रही हैं, तो ऑफ कोर्स बॉयज विल डिफ्यूज फास्टर। So they are directly proportional to the velocity and they are inversely proportional to their masses, square root of masses. अगर girls जो है वो they are weighing, each girl is weighing let's say 70 kg and each boy is weighing 50 kg, तो boys की उनको मूव करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी ना, they can move easily. So rate of diffusion जो है वो is proportional, inversely proportional to the square root of masses. क्लियर है ये बात? सर तो अगर वेट कम होगा तो डिफ्यूजन तेज होगा, अगर डिफ्यूजन का रेट कम होगा तो डिफ्यूजन स्लोली होगा, डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जो जैसे दो जगह है तो जो टोटल क्वांटिटी होती है दोनों की, तो उसमें जरूरी है कि एग्जैक्ट हाफ हो जाता है उस क्वांटिटी का। हाँ जी बिल्कुल, डिफ्यूजन तब तक चलता रहेगा जब तक गैसेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। ओके सर। Yes, sir, because nature wants equilibrium. हाँ जी, नेचर वांट्स इक्विलिब्रियम। सर तो अगर सपोज मेरी मास ज्यादा है मगर मेरा रेट ऑफ डिफ्यूजन, मास ज्यादा है और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा है, तो डिफ्यूजन फास्ट होएगा कि स्लो? तो फास्ट होगा, क्योंकि आप शायद बहुत तेज भाग रहे हैं। आप समझे इस चीज को ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर मुझे नहीं पता है देन आई नीड टू नो टू थिंग्स, कि आपका मास कितना है और आपकी वेलोसिटी कितनी है। अगर मास कम है और वेलोसिटी भी कम है तो आई से आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम है। अगर आप शुरू में ही बोल रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है तो बात खत्म, फिर मास और वेलोसिटी इसका मतलब अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा है ताकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो जाए। ओके सर। राइट सर अगर हम वैसे देखें तो सर अगर जितना ज्यादा मास होगा तो क्या उतना कम डिफ्यूजन होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन? रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा, हाँ जी बिल्कुल। जो आपका गैसेस है, लाइटर गैसेस है ना, हाइड्रोजन है लाइटर गैस है, इट डिफ्यूज फास्टर। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है ना, these are little heavier gases so they diffuse slowly. Okay sir, v क्या है? V is velocity, m is mass. ठीक है, डन। यस सर, अंडर। तो ये जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है, कौन सी है फोर्थ प्रॉपर्टी बताओ? मैटर, particles of matter move are in constant motion or move are in constant state of motion, है ना। इसी के बेस पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी है, तो दैट वी विल डू आफ्टर दिस पार्टिकल्स विल बी फिनिश्ड। ठीक है,
इसमें आप फिफ्थ मैटर आपने लिख लिए है ना, यू हैव रिटन एवरीथिंग। कौन कौन से 5 हो गए भाई? हमने 4 पहला प्रॉपर्टीज हो गई हैं। ये स्टार्ट हो सर सबसे पहला बहुत छोटा था, फिर हाँ जी, स्पेसेस वाला था, फिर अट्रैक्शन था, फिर कांस्टेंट। मोमेंट। ठीक है। एंड पार्टिकल्स है ना, एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो एनीवन, व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट? Sir, we will take an beaker with salt, with water in it, and we'll add salt, हाँ and जी, it हाँ will जी, dissolve, and there is a potassium इम्प्रेसिव। permanganate activity हाँ also. नहीं नहीं, पहले अयान का ले लेते हैं। अयान तो सिंपल कह रहा है। अयान क्या कह रहा है कि सर अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, है ना, उस ग्लास ऑफ वाटर में टिंग 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 टिंग, अगर हम सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, है ना, थोड़ा सा सॉल्ट डाला मैंने, है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस, अब पूरे ग्लास में जो सॉल्ट है वो बहुत ही थोड़ा सा है ना, तो मैंने ये जो थोड़ा सा सॉल्ट लिया था, लेट्स से मैंने इतना सॉल्ट लिया था, और अगर मैं यहाँ से 1 चम्मच पानी निकाल रहा हूँ, तो उस 1 चम्मच पानी में बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक अमाउंट का सॉल्ट बच गया, मतलब, है ना, अगर ये सॉल्ट जो है यस सर। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 1 चम्मच में बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट बचा। इस सॉल्ट को अगर मैं लेट्स से एक बड़े से जग में अगर मैं इसको वाटर को डाल रहा हूँ, ठीक है, एंड इफ आई आस्क अ पर्सन, द पर्सन विल स्टिल से कि हाँ ये वाटर जो है, दिस वाटर इज सॉल्ट, है ना, जबकि पर्सन जो पिएगा वाटर है ना, वो मे बी एक सिप, और उस सिप में इस माइक्रोस्कोपिक का भी माइक्रोस्कोपिक अमाउंट डल रहा है ना। सो दैट मीन्स ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट जो है, दिस इज मेड अप ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल which is getting even transferred from one place to another place, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम परमैंगनेट अगर हम एक बीकन में डाल रहे हैं, तो छोटे से 2-3 क्रिस्टल्स अगर हम डाल रहे हैं, तो ये पिंक हो गया। पिंक क्यों हो गया? क्योंकि पूरे बीकन में पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल स्प्रेड हो गए हैं। अगर मैं यहां से एक छोटा सा पीस लेकर फिर इसमें डाल रहा हूं, अगेन दिस विल बिकम पिंक, है ना। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो गए? 1/100। ईच क्रिस्टल इज डिवाइडेड इनटू 1/100th पार्ट। अगर मैंने 1/100th पार्ट लिया है, दिस आई एम पुटिंग हियर। नाउ अगेन इफ आई एम टेकिंग वन स्मॉल अमाउंट, दिस इज 1/100th पार्ट, आई एम पुटिंग इट हियर, अगेन दिस इज मेकिंग इट पिंक एंड आई एम टेकिंग 1/100th पार्ट ऑफ इट, अगेन आई एम पुटिंग इट नेक्स्ट बीकन, इट इज अगेन बिकमिंग पिंक, आई एम टेकिंग 100th पार्ट ऑफ इट। तो मैंने जो 2-3 क्रिस्टल्स है उनका मैंने कितना पार्ट लिया यहाँ पर? आई हैव टेकन दिस मच ऑफ पार्ट। मतलब इस 2-3 क्रिस्टल्स को आई कैन ब्रेक इनटू मिलियन स्मॉल पार्ट्स। Sir, I've actually done this activity at home. ओके, वेरी गुड। Sir, I've यस done सर, it टीचर with. ने करवाई थी। यस Sir, I've done it with Dettol solution. हाँ जी, डिटोल से भी कर सकते हैं। डिटोल फूड सर कलर, फूड कलर। फूड कलर, यस। सर लेकिन सर उसके ना तो फाइनल वाला जो बोल था उसका ना इतनी कम स्मेल आ रही थी उसकी, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि आप डेटॉल डाल ही नहीं रखा इसके अंदर। but even very very faint, still then it shows the presence of Dettol, है यस ना। सर। it means very minute particles are still able to transfer, है ना। अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलता कि भाई ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, इसका 1 मिलियंथ पार्ट जो है आप बीकन में डालें, तो आप इसको तोड़ ही नहीं पाते ना 1 मिलियन पार्ट्स में। आप सोचिए वो जो 1 मिलियंथ पार्ट है वो माइक्रोस्कोपिक हो गया आपका, है ना। बट विद दिस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली यू हैव मेक श्योर कि उस क्रिस्टल का 1/1,000,000th पार्ट इज लेफ्ट इन दिस बीकर। सर वो भी बड़े सिंपल वे से, विदाउट यूजिंग एनी प्रोफेशनल इक्विपमेंट। हाँ जी, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, बोलो। अगर हम 100 ग्लास लेते तो सब फिर भी 100 ग्लास में भी रहता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें रहता 100% रहेगा उसमें भी, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट जो है लेट्स से 50 टाइम्स कर रहे हैं नाउ। बट द थिंग इज, सर हम उसे उसमें सेंस नहीं जो कर पाएंगे। प्रेजेंस है, हाँ, जो प्रेजेंस है वो इतनी माइन्यूट होती है कि आप उसको नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, है ना। देन यू विल नीड स्पेशल इक्विपमेंट्स टू ऑब्जर्व इट। सर बट वो होता तो ना उसके अंदर, होता चाहे जरूर बहुत होगा, कम। बिल्कुल होगा। सर पर जैसे एक माइक्रोस्कोपिक अमाउंट ऑफ सॉल्ट बची एक बीकर में, तो हम उसको भी 20-30 बीकर में डिवाइड करेंगे तो क्या ही बचेगा?
ना, बिल्कुल 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 ऐसा नहीं है कि भाई यू कैन कीप ऑन डूइंग इट, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला है कि एक ड्रॉप वाटर में, ठीक है, देयर आर 10⁻21 पार्टिकल्स आर देयर, आप समझ रहे हैं? तो Yes. अगर आपने एक ड्रॉप वाटर की जगह लेट से आपने एक ड्रॉप लेट से आपने एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का लिया है, तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं बेटा। अब आपने उसको 10 लीटर्स वाटर में डाला है ना, उसमें से आपने लेट से 100 ml निकाला है यहाँ पर, तो बेसिकली यू हैव ऑलरेडी मेड इट 1/100 टाइम्स। अब मैक्सिमम कितना अलाउड है? मैक्सिमम 10⁻21 तक अलाउड है ना। तो आप Yes. यही एक्सपेरिमेंट अगर 10 टाइम्स करेंगे तो प्रेजेंस विल बी देयर, है ना, मे बी 1-2 मॉलिक्यूल्स विल बी देयर, बट उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर देन चांसेस आर नेग्लिजिबल। तो मतलब ये 1/10⁻21 से आगे नहीं जाएगा, मतलब हाँ जी, इतने हाँ जी, फ्रैक्शन हर तक ही जाएगा। एक्सपेरिमेंट में आप इसको 1/100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 10⁻21 को आप कितनी बार कर सकते हैं? 10 बार ही तो करेंगे, Yes. है ना। उसके बाद फिर चांसेस आपके नेग्लिजिबल होते चले जाएंगे। यस सर। राइट। Yes, sir. सर ये सिर्फ एक सर ये सिर्फ एक क्रिस्टल के लिए ना, अगर हम बहुत सारे हाँ जी, डालेंगे तो फिर ज्यादा दूर तक चलेगा। हाँ जी बिल्कुल। अगर आप 10 टाइम्स और क्रिस्टल डालेंगे तो एक स्टेप और अलाउड हो जाएगा आपको, बस इतना फर्क आएगा। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किया तो ये हमने बहुत पहले भी है, आई थिंक 5th क्लास में हमने ये डिफरेंसेस किए थे, बट विल डू देम अगेन। सो बेस्ड ऑन मास, सॉलिड, More. लिक्विड एंड गैस, व्हिच हैज गॉट मोर मास? Solid. Solid. सॉलिड। ऐसा नहीं है, Sir, the masses are बोलोगे। same. Sir, ठीक the है, mass is same. मास इज सेम ना। बेसिकली मास जो है वो इस पे नहीं डिपेंड कर रहा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के उसमें ना, या तो आप वॉल्यूम का बोले, है ना। सो मास में आई लीव इट ब्लैंक एक्चुअली, है ना। लेट्स नॉट टेक द मास इनटू पिक्चर हियर। Okay. ठीक है, और इफ रिक्वायर्ड देन आई विल से इट इज सेम। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Can you tell the difference between mass and volume? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मास में अगर आपको यहाँ पर चाहिए ना, तो आप ये यू कैन से दिस इज डेफिनेट मास, है ना, डेफिनेट मास, डेफिनेट मास। मास डज नॉट चेंज फॉर दिस। मास क्या है बेटा? मास इज केजी, वॉल्यूम इज हाउ मच स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइंग। अगर मैंने आयरन लिया 1 kg and I have taken 1 kg of cotton, so both have got same mass, but cotton has got more volume, Yes. है ना। और तो मतलब वो डेंसिटी, एरिया कवर ज्यादा कर रहा है। हाँ जी, डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो कॉटन हैज गॉट सेम मास बट मोर वॉल्यूम, देयरफॉर लेस डेंसिटी। कॉटन की लेस डेंसिटी है और आयरन हैज गॉट मोर डेंसिटी। So, sir, weight and mass are same. वेट एंड मास आर नॉट सेम, आपने इन 8 में किया होगा। ठीक है, जो मास है फिजिक्स के अकॉर्डिंगली, मास इज इन केजी एंड वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल, दैट इज m into g। ठीक है, m is your mass and g ग्रेविटेशन कांस्टेंट। acceleration due to gravity, 9.81 meter per second square in case of earth। वेट जो ये जीरो हो सकता है स्पेस में, मास कैन नॉट बी जीरो, मास इज कांस्टेंट, वेट वेरी। ठीक है, ये लेकिन डेफिनेशन किसके लिए है? फिजिक्स के लिए है ना। कहीं पर मैथ्स या केमिस्ट्री में वेट बोल रहा है तो उसको आप मास की तरह ही ट्रीट करो। फिजिक्स में सिर्फ ध्यान रखना है ना, मास और वेट अलग अलग होते हैं। सर लेकिन अभी तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फिर उसमें तो अलग अलग है। उसमें हम सेम लेंगे मास और वेट, है ना। केमिस्ट्री में आपको कई जगह मिल जाएगा कि 2 ग्राम वेट ऑफ सॉल्ट वाज टेकन एंड मिक्स्ड विद। ठीक है, तो लेमन टर्म में वेट एंड मास इज सेम। बल्कि लेमन से अगर आप बात करोगे ना, आप अपनी छोटी सिस्टर से पूछो व्हाट इज योर मास, वो कहेगी भैया तंग कर रहे हैं, है ना, पता ही नहीं उसे मास क्या होता है। ठीक है, तो सिर्फ फिजिक्स, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें वेट इज फोर्स एंड मास इज व्हाट इज इन केजी।
राइट? Yes, sir. Yes. अगर शेप की बात करेंगे, सॉलिड हैव गॉट फिक्स शेप, Fixed. है ना, और डेफिनेट शेप, एंड लिक्विड एंड गैस हैव गॉट indefinite shape. Indefinite. Indefinite. Solid has got definite volume. Liquid also definite volume. Definite volume, है ना भाई? जो 1 लीटर ऑफ लिक्विड है वो 1 लीटर ऑफ लिक्विड ही रहेगा, आप किसी भी कंटेनर में डालें. गैस हैज गॉट इनडेफिनेट वॉल्यूम, है ना. 1 लीटर ऑफ गैस जो है, अगर जैसे मान लो एलपीजी का सिलेंडर है ना, उसमें से गैस लीक हो गई. एलपीजी में तो हार्डली लेट्स से 30 लीटर्स इज देयर स्पेस, बट वो लीक होके जो है वो पूरे बिल्डिंग को जो है वो फिलअप कर सकती है ना. एवरीवन विल बी एबल टू स्मेल इट. सो नो डेफिनेट वॉल्यूम. कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है. सो दीज टू आर इनकम्प्रेसिबल, है ना. अगर आप लिक्विड की बात करेंगे तो आप एक सिरिंज लें, है ना, और सिरिंज को आप वाटर से फिलअप कर दें, ठीक है. उसके बाद आप यहां पर अपनी फिंगर लगाएं एंड यहां से आप पुश करें. यू विल फाइंड यू आर नॉट एबल टू पुश द सिरिंज. आप सिरिंज को पुश नहीं कर पा रहे हैं भाई. क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, है ना. और यहीं पर अगर आपने इसको एयर से भरा होता, इफ दिस इज फिल्ड अप विद एयर, देन यू कैन कंप्रेस इट, है ना. तब आप उसको कंप्रेस कर सकते थे. राइट? एग्रीड? Yes, Yes, sir. sir. And these are compressible. Arrangement of particles, यहाँ पर जो है टाइटली पैक्ड, है ना, Near each other. और कॉम्पैक्ट, ठीक है. टाइटली पैक्ड और कॉम्पैक्ट. एंड इन लिक्विड नियर टू ईच अदर, Far from each other. एंड फार फ्रॉम ईच अदर. मोशन ऑफ पार्टिकल ये हमने किया था, है ना. दैट वाज दिस इज नो Vibratory. मोशन, only rotatory, vibratory, Linear. shows linear motion. ठीक है. rigidity is not changing the shape like that, ठीक है. so these are your rigid and these are your fluid. Fluid means something which can change the shape, है ना. डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे, दिस इज हाई डेंसिटी, दिस इज मॉडरेट, दिस इज लो. एक्सक्यूज मी सर. जी हाँ जी. सर सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी में अगर हम किसी भी मेटल को हैमर वगैरह करते हैं तो वो क्या कहते हैं सर, श्रिंक होना शुरू हो जाता है. दोबारा बोलो. सर सॉलिड्स को जब हम सर जैसे हम उसको हैमर से मारेंगे या फिर दो चीजों के बीच में रख के प्रेशर लगाएंगे तो उसका साइज चेंज होने लग जाता है. ना, अगर मान लो आयरन पीस है ना, उसको आप प्रेस करो, तो प्रेस करोगे तो उसकी शेप चेंज होगी, बट वो कंप्रेस नहीं होगा बेटा, है ना. शेप विल स्टार्ट चेंजिंग बट इट विल नॉट बी कंप्रेस. लेकिन अगर आप स्प्रिंग की बात करो, स्प्रिंग तो सॉलिड है, ठीक है. और उसको फिर आप कंप्रेस करें तो कंप्रेस हो रहा है. या फिर स्पंज की बात करेंगे, स्पंज इज सॉलिड, व्हेन यू कंप्रेस इट इट गेट्स कंप्रेस्ड. तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर एक्चुअली स्प्रिंग में भी हम कह सकते हैं कि शेप चेंज हो रही है क्योंकि उसका मास सेम रहता है, लेकिन स्पंज का थोड़ा सा है. ये स्प्रिंग में भी तो शेप चेंज हो रही है, कंप्रेस हो रहा है ना. स्प्रिंग को प्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस हो रहा है. सर लेकिन उसका Sir, वेट सेम रहता है. मास रिमेन सेम, है ना. बट वो तो स्पॉन्ज का भी मास सेम रहता है. बट स्पॉन्ज जो है, देखो स्पॉन्ज इज सॉलिड बट स्पॉन्ज इज कंप्रेसिबल. बट हम तो यहाँ बोल रहे हैं सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल. सर मेरे ख्याल से हम मेजॉरिटी का लेते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है.
ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो वी टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ सॉलिड और पार्ट ऑफ स्पंज, है ना। अगर स्पॉन्ज में हम बात करेंगे तो स्पॉन्ज में जो कंप्रेस हो रहा है दैट इज द एयर इज गेटिंग एस्केप्ड आउट ऑफ द स्पॉन्ज, बट स्पॉन्ज एज अ सॉलिड, ठीक है, स्पॉन्ज की एयर एस्केप हो रही है, बट स्पॉन्ज की जब एयर एस्केप हो जाएगी देन विल टेक इट एज स्पॉन्ज एज अ सॉलिड, है ना। आप अगर ऐसे एज सच बैलून की बात करेंगे तो बैलून तो सॉलिड होता है ना। रबर जो है, रबर इज सॉलिड, बट उसके अंदर जब आप वो डाल रहे हैं, क्या कहते हैं, वाटर डाल रहे हैं, तो वो स्ट्रेच हो रहा है ना। तो बट सॉलिड्स एज सच जो है वो दे कैन नॉट ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होना चाहिए, बट रबर यहाँ स्ट्रेच होकर मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वी डोंट टेक इट फॉर अ पर्टिकुलर डिजाइन के, उसमें हम नहीं बात करते ना। स्प्रिंग की अगर आप बात करेंगे तो स्प्रिंग की शेप की बात नहीं करेंगे हम, स्प्रिंग के जो पर्टिकुलर मेटल यूज है उसकी बात करेंगे, है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये आपका बेटा स्प्रिंग है, ठीक है, तो स्प्रिंग एज सच द डिजाइन इज कंप्रेसिबल, डिजाइन इज कंप्रेसिबल, बट ये जो स्प्रिंग जिस मेटल का बना हुआ है ना, दिस मैटर विच इज सॉलिड इज नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है, वो डिजाइन कंप्रेसिबल है, बट वो जो मैटर है वो कंप्रेसिबल नहीं है। भाई आप इतने मैटर को लेकर फिर उसको कंप्रेस करके देखो, है ना, दैट विल नॉट कंप्रेस। So we are not talking about here the designs, we are talking about the matter with which it is being made of, right? Excuse me, sir. हाँ जी सर हम सॉलिड्स के लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनका शेप डेफिनाइट है, कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स ओनली, इफ वी पुट ऑन वेट और वी लूज वेट सो द शेप इज चेंजिंग। तो बेटा यहाँ पर ना देखो, पहला तो ह्यूमन बीइंग्स को टोटल सॉलिड कहना भी गलत है ना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड भी होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो बायोलॉजिकली व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग योर सेल्स आर डिवाइडिंग देमसेल्फ एंड इट्स चेंजिंग द शेप, बट व्हाट इफ आई विल टेक आउट द पीस ऑफ बोन फ्रॉम योर बॉडी, है ना, इट्स शेप विल नॉट चेंज, है ना। अब देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई एक हैंड लिया हमने पर्सन का, है ना, नाउ दिस हैंड बायोलॉजिकली नाउ दिस इज नॉन लिविंग, अगर ये इसको मैंने एटमॉस्फेयर में रखा तो फिर इसकी शेप जो है वो चेंज होने लगेगी, है ना, ये डिकम्पोज होने लगेगा। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस एज सच, वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग एज अ सॉलिड ओनली। अगर मैंने इसको बेटा एक चैम्बर में रखा, है ना, नाउ विल दिस शेप विल चेंज, गैस यहाँ रखोगे तो गैस की शेप चेंज हो जाएगी, वो पूरा चैम्बर को फिलअप कर लेगी, बट विल दिस सॉलिड विल फिल अप द फुल चैम्बर? नो, है ना। इस एंगल में तो देखो, अगर मैं बोलूं सॉल्ट, सॉल्ट बताओ सॉलिड है या लिक्विड है? सॉलिड, बट सॉल्ट सर को बट आपने जो लास्ट वाला और आपने जो हाथ, एक मिनट सोम, है ना, अगर आप सॉल्ट को किसी भी चीज में डाल रहे हैं तो वो तो सॉल्ट तो उसकी शेप ले लेता है, और हमने अभी ऐसा ही बोला कि भाई सॉलिड की शेप फिक्स्ड है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजाइन ऑफ द सॉल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्ट एज अ सॉलिड पार्टिकल। तो इसमें मैं सॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट की बात कर रहा हूं। क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का वो जो एक छोटा सा पार्टिकल है, क्या उसकी शेप फिक्स्ड है? क्या उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है? क्या उसका मास फिक्स्ड है? यस। उसके बाद आप कई सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स ले लेते हो, then you are not talking about salt anymore, you are talking about the design of the salt, salt as a grain, when you are taking lot of salt as a grain, तो उसमें तो फिर वो डिजाइन हो गया ना, that things are not applicable. Understood? Yes, sir, got it. Okay, that was solid, liquid and gas. Now let's do the kinetic theory of gases.
काइनेटिक थियरी से पहले इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल लाइक टू टेक चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट 20 मिनट्स विल बी वेरी गुड। रेडी? आई एम नॉट टेकिंग काइनेटिक थ्योरी, मेरे को रिमाइंड कराना, आई विल टेक इट नेक्स्ट टाइम। आई एम टेकिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। Yes. Ready? Yes, sir. 1 minute. सर जैसे बी कंडेंसेट और प्लाज्मा है, उनकी प्रॉपर्टीज मतलब हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज बेटा जस्टिफाई तो अगर आप बोलेंगे तो बी कंडेंसेट तो इट विल गो वेरी फार है, मतलब वेरी फार मींस आप कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद जब पीएचडी करेंगे ना तब बी कंडेंसेट आएगा डिस्कस करने के लिए। ठीक है, सो ओके सर। नॉट इन आवर सिलेबस, आपको सिर्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये होते क्या है। ठीक है, चेंज ऑफ मैटर की बात करेंगे तो अब पूरे उसमें जो है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बी कंडेंसेट और प्लाज्मा एनी मोर। ठीक है, वी आर जस्ट डीलिंग विद सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, so if you are changing from solid to liquid, the process is called as Melting. And from liquid to gas, Vaporization. vaporization. And from gas to liquid, Condensation. Condensation. liquid to solid, फ्रीजिंग। Freezing. okay, like Sublimation. Sublimation. sublimation का example दो। Aluminum chloride. And Aluminum chloride and NaCl when put in a boil and exposed to open air, aluminum chloride vapors out and only Sir, NaCl. naphthalene balls. naphthalene balls. And famous example, no, Dry ice. dry ice, very good, है ना। dry ice is solid CO2, solid CO2 वो melt नहीं होती है, that directly vaporizes। Sir, do we have to draw? हाँ जी बिल्कुल। and this one is reverse sublimation। Sublimation. सर रिवर्स सब्लिमेशन को क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं देन द क्रिस्टल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, है ना, तो स्पेसिफिक क्रिस्टलाइजेशन वर्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके सर। you can call this as deposition। ठीक है, only thing is deposition is a better word, but thing is schools में deposition नहीं कराते हैं ना, NCERT में reverse sublimation given है, तो we go with this only। Sir, noted. Noted? Change of state of matter can be achieved by change in temperature। Write down है ना, very important। Change of temperature can be achieved by change in temperature or change in pressure। ठीक है, or by adding and removing impurities, है ना, that we will see।
तो चेंज इन टेम्परेचर तो हमने ऑलरेडी देखा ही है ना। तो अगर आप टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मोशन विल पार्टिकल्स है इंक्रीज। उनका मोशन इंक्रीज होगा, मोशन इंक्रीज होगा तो थोड़ा सा बॉन्डिंग उनकी ब्रेक होगी, बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो वो सॉलिड से लिक्विड एंड देन लिक्विड से गैसियस स्टेट। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ टेम्परेचर की बात करूँ, टेम्परेचर की यूनिट्स क्या है बेटा? Kelvin, Celsius and Fahrenheit, Fahrenheit. Celsius. Fahrenheit. It is Celsius, Kelvin एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखेंगे इनमें से एसआई यूनिट कौन सी है। वेरी गुड मलिक। हाँ जी ठीक है। सो फ्यू स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव रिटन डाउन केल्विन, few have written down Celsius and one student has written down Fahrenheit। ठीक है, फ़ारेनहाइट जो है वो मेजरली यूज होती है आपका यूएसए में, सेल्सियस जो है वो रिमेनिंग वर्ल्ड में, एंड केल्विन जो है वो साइंटिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं एसआई यूनिट कौन सी है। सो केल्विन इज योर एसआई यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका एब्सोल्यूट जीरो है, absolute zero, that is minus 273.15 degree Celsius, that scientists have taken as 0 Kelvin। फिर जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा, that is minus 272.15 degree Celsius, this will be 1 Kelvin। ठीक है, सो यहाँ पर जो रिलेशन है that is Kelvin is equals to डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, कॉपी कर लें इसे। एंड सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। इसे भी कॉपी कर लें। सर ये 0.15 भी है 273 के साथ? हाँ जी सर तो 273.5 भी आएगा ना? हाँ 0.15 भी आएगा, 273.15। Sir, but 0.15 is not commonly taken. Is not? Sir, it is actually ignored. It's not commonly used. हाँ, इट्स एज पर जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट एक्चुअल उसमें जो है 273.15 भी होगा। Yes, sir, I know. सर तो फ़ारेनहाइट 9/5 into C plus 32 जाएगा। हाँ, फ़ारेनहाइट अगर आप लेना चाहें तो फ़ारेनहाइट इज 9/5C plus 32। ठीक है, ओके, रेडी फॉर फ्यू क्वेश्चन। नॉट ऑन दिस, न्यूमेरिकल नहीं ले रहा हूं मैं। ठीक है, फ्यू इंट्रिगिंग क्वेश्चंस। ओके, related to melting. So would a snowman melt faster with a jacket on? True or false? ठीक है, let me write this. Snowman will melt faster with a jacket on. True or false? Yes, sir. हाँ जी Sir, true. Sir, true. chat box Was my answer correct? I'll tell 1 minute. True, but difference is less. Okay, true, false. Let me ask false first. Ananya Sharma, why you are saying false? Sir, because when we wear jacket, actually I think it's trapping the heat that is coming out of our body and just keeping us warm with our own heat only. But here the snowman won't be producing any heat, so the jacket won't work.
Okay. And then it will take same time to melt, or it will take more time now to melt? It will take more time, but not, I don't think so, with the heat of the jacket. Okay, impressive, है ना? Ananya has explained it wonderfully. So what she is saying is the jacket is not a heater. Jacket is a insulator. अगर आपने स्नो को इंसुलेट कर दिया, सब तरफ से रैप अप कर दिया, तो जो आउटसाइड हीट है दैट विल नॉट बी एबल टू रीच द आइस एंड मेल्ट इट, and it will take longer for snowmen to melt. ठीक है? So this statement is false. तो ये क्या नोट कर ले हमें ये सेंटेंस? नहीं नहीं, ये सिर्फ जस्ट थोड़ा सा इंट्रिगिंग क्वेश्चंस आर देयर. ठीक है? Just like why different matter have got different melting points? भाई अगर आप बात करेंगे वैक्स की, it melts faster, and if you talk about iron, then it melts after a lot of heat. हाँ जी, why that is happening? Because they have different temperature. नहीं, I have taken at same temperature. भाई 10 डिग्री टेम्परेचर पर मेरे पास वैक्स है, 10 डिग्री पर आयरन है. Sir, when I am heating them in the same pan, so iron is not melting, wax is melting. Sir, may I tell? Sir, due to their bonding. Wait, Riyan. Sir, may I tell? हाँ जी, sure. Sir, this is because sir, they have different heating point. Different heating point. Can I? Yes. They have different Yes, melting sir, point. Melting point, yes sir. Na? Melting. So my question is why the different melting points are there? Question तो यही है. सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग क्यों है? क्या चीज है जो डिटरमाइन कर रही है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा? नहीं, सोहम. सर, जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं. तो ब्यूटीफुल, वेरी गुड. राइट डाउन द क्वेश्चन, एवरीवन प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन. ठीक है, एंड देन राइट डाउन द आंसर आल्सो. Written down? yes sir. So just a minute. No, sir. Okay. Okay. Sir, noted. Okay. Sir, noted. Let's take the last part है ना, that's kinetic theory of gases. ठीक है, and then we'll end the session. I'll post Socrative till kinetic theory of gases. सर, तो क्या मतलब जो ये हमने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर करा तो उसी का पार्ट है क्या अलग से? नहीं, ये अलग से है. ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो ये सेपरेट पार्ट है. चेंज ऑफ मैटर जो है ये काफी लंबा टॉपिक है, बट आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस इट फर्स्ट. बट नाउ वी आर लेफ्ट विद 5-6 मिनट्स, सो आई एम थिंकिंग टू टेक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आल्सो. ठीक है, चेंज ऑफ मैटर में हम डिस्कस करेंगे वेपराइजेशन, है ना. वेपराइजेशन आर ऑफ टू टाइप्स. एनीवन? Vaporization is change of liquid to gas. And solid and gas to solid. Sir, boiling also. Solid to Sir, gas. boiling. Okay, type of vaporization. One type is boiling, है ना.
that is Evaporation. and evaporation. Two are there. तो boiling और evaporation, then we'll discuss कि evaporation किन factors पर depend करता है, evaporation कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, effects of evaporation है ना. So काफी लंबा चौड़ा part है evaporation itself. Then we'll discuss कि how the pressure is affecting the change of state. अगर हम pressure increase decrease कर रहे हैं तो क्या हो रहा है. Then latent heat of vaporization, latent heat of fusion है ना, बहुत interesting topic है. ठीक है, that will be dealing with. ठीक है, first is kinetic theory of gases. ठीक है, तो kinetic theory of gases, it says that gas particles are in constant state of motion and their bombarding with container causes pressure to be generated. ठीक है, ये जो गैसेस हैं, गैसेस को आप जो है, अगर आप एलपीजी का सिलेंडर की बात करेंगे उसमें हाई प्रेशर में गैस इज देयर, बट वो प्रेशर कैसे आ रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है क्या भाई. प्रेशर हमने पढ़ा था फोर्स अपॉन एरिया, बट यहाँ पर कोई फोर्स होना लगा रहा है सिलेंडर के अंदर बैठ के टक 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 टक. अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो ये प्रेशर कैसे है सिलेंडर में भाई. इतना प्रेशर है कि वो फट भी जाता है सिलेंडर. सो दैट प्रेशर when a cylinder is holding gases is because the gas particles are moving very fast and they are bombarding continuously with the container wall. और container wall पे अगर वो एक gas molecules bombard कर रहे हैं तो they are applying a force and that force is what is generating the pressure. तो सर कन्वेक्शन चल रहा है. हाँ जी, हाँ जी. सर क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एयर है लेकिन बहुत ज्यादा छोटा एरिया है, तो फिर हमने उसे कंप्रेस करके रखा है इसलिए वो ज्यादा बॉम्बार्ड कर रहा है. हाँ जी, बट ये गैस का प्रेशर ना इट विल बी देयर. अगर एरिया थोड़ा इंक्रीज कर देंगे बट प्रेशर विल रिड्यूस, बट प्रेशर विल स्टिल बी देयर बिकॉज सम गैस पार्टिकल्स विल बी बॉम्बार्डिंग विद द वॉल्स. यस सर. ठीक है, नाउ देयर आर assumptions. ये वाला पार्ट एक्चुअली रहने देते हैं अभी है ना, फिर ये लंबा खींचेगा हमारा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में विल डील विद दिस. वन इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विल फॉर्म अ न्यू चैप्टर इन क्लास 11th है ना. ये क्लास 11th में अलग से चैप्टर आएगा, तो विल जस्ट कवर द बेसिक्स एंड देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट क्लास में इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इवेपोरेशन है ना. दिस टॉपिक्स विल डिस्कस. हाँ जी बेटा. काइनेटिक थ्योरी सिर्फ गैसेस की है? सिर्फ गैसेस की है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. सर तो आप फिर क्या सॉपरेटिव में इस टॉपिक का डालोगे कुछ? नहीं, इस टॉपिक का कुछ नहीं होगा ना. ये टॉपिक वैसे भी बहुत छोटा सा है, इसमें बस assumptions है कि आइडियल गैस कैसी होती है, फिर उसके बाद एक फॉर्मूला है PV/nRT है ना. I'll explain that formula and then it will be done. ओके सर. ओके सर हमको ना सर क्लास में क्या कह रहे हैं सोम? कुछ नहीं सर. ओके, चलो जी, लेट्स एंड द सेशन. और ये आपका बाय सर, थैंक यू. मैथ्स में जो हम कर रहे थे मैम ने कितना कराया? सर क्यूबिक पॉलिनोमियल का करवा दिया फैक्टर.